الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول باز کی جو ہے لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ باز کی لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ نکاح ہوا سمیت وہ سب ہسپتال کے روم میں تھے جہاں فردوس خان اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ ہوٹل سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ٹرک سے گاڑیوں کو بری طرح سے تصادم ہوا۔ فخر صاحب اور اس کی اہلیہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ فرزانہ خاتون کی حالت قدرے بہتر تھی، جبکہ زیان کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی جس کے باعث اس کی سر کی سرجری جاری تھی۔ زیان تو اس کی یادداشت چلی جانے پر کی جانی تھی، مگر پھر میں کچھ بھی کہنا قبل وقت تھا۔ یہاں فردوس خان کی حالت بھی تسلی بخش نہیں تھی، کیونکہ نکاح بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا تھا۔ تو حادثے کی خبر سن کر کریچ مکھیاں شروع ہو گئی تھی کہ ادھونی کا کالا سایہ بن کر ان کے خاندان میں آئی ہے۔ موقع کی نزاکت، عزت و وقار کے پاس رکھنے کے لیے فردوس خان نے حیدر خان کے آگے معاذ حیدر خان کی قربانی مانگی۔ ہسپتال کے سرد روم میں تمام نفیس ساکھ تھے۔ ایک طرف رمیسا اور مریم ادھونی کو بلا رہی تھی کہ جب قاضی مخاطب کرے تو اس نے کیا کہنے ہیں، اور معصوم تھی انجان مگر مقابل بیٹھا وہ 16 سالہ ماس پار تاثر لیے اتنا کم عقل تو نہ تھا جو موجود حالات کو نہ سمجھتا۔ وہ بس ایک یک ٹک سرمی آنکھیں اس لٹل گل پر مسکوز کیے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایجاد و قبول کے مہرال طے پائے اور ادھونی دورانی سے ادھونی محاذ حیدر خان کا سفر شروع ہوا۔ ادھونی کی مثبت درد عمل ظاہر کرنے پر معاذ موم سے مسکرایا، مگر جلد ہی خود کو ایک خول میں لپٹا، کیونکہ فی الحال وہ ادھونی کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں نہ تھا۔ ایک سرسری نگاہ مقابل بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ایک سردی آ بڑھ کر اس نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اویزا کو فون کیا۔ بالکنی میں جا کر کچھ ضروری ہدایت اسے سمجھا کر اس نے سگریٹ لبوں سے لگائی۔ یہ جشن تھا یا سوگ؟ جشن یہ کہ آج وہ اس کی پناہوں میں تھی، اور اس کی شریک حیات اس کی لٹل گرلز، یا اس دوست و کزن کا سوگ جس کو اپنے ہاتھوں سے جنم رسید کر کے آیا تھا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے سوچ کر کمرے میں داخل ہوا کہ اب ادھونی کو حقیقت بتا کر نیا سفر شروع کریں، مگر جو ہی قدم کمرے کے بیرونی حصے میں پڑے لمحوں کے لیے ٹھٹکا خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر واش روم کو دیکھا، لائٹ آف تھی، روم ڈور بھی اندر سے لاک تھا، مطلب وہ کمرے میں ہی تھی۔ وہ کوئی عام شخص تو تھا نہیں، باز جیسی نگاہ رکھنے والا 35 سالہ نوجوان قدرے دھیمی قدم اٹھا کر عین دروازے پر رکا۔ جب نظر زمین پر لہراتے سائے پر کی، اس نے مشکل سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا، قدم بڑھا کر ایک جس نے اس کے مقابل آیا۔ وہ جو اپنی آنکھیں سختی سے بیچے پردے کی آڑ میں کھڑی تھی، اپنے مقابل ماسک کو پا کر جھٹکے سے کمر کے گرد لپٹے ہاتھ آگے بڑھائے، جن میں اس نے نرم ہاتھوں میں مزوز سے چھری تھام رکھی تھی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں میں کھلونا دیکھ کر وہ چمٹا سینٹ ماسٹر سے مسکرایا، مگر سامنے کھڑے وجود پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ مجھے جانے دے ورنہ میں مار دوں گی۔ اس کے جملے پر معاذ کے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں پھنسائے، کشادہ شکل، اندود پیشانی، غمناک سرمی آنکھیں جو زہر کرنے کا ہنر بخوبی جانتی تھی، انابی لب دانتوں تلے دبائے وہ سنجیدگی سے گویا ہو، نہیں جانے دے رہا، اب میں مار دوں گی۔ آواز رونگلی تھی۔ تو مار دو۔ بے تاثر لہجہ اطمینان کا بے دید تھا۔ آپ کیا تل ہے؟ لہجے میں واضح حقارت تھی۔ یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے، کچھ نہیں بتاؤ۔ بے نیاز سرد لہجہ، آواز ضبط کرنا مشکل مرحلہ تھا۔ فاسفورس جیسے نیلے سمندر کی ماند نیلی آنکھوں میں گہرا نمکین پانی واضح ہونے لگا۔ مقابل نے ضبط سے سرد آہ بھری، اگر تمہارا یہ لائف شو ڈرامہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ کھلونا مجھے دو۔ آپ کی بات اثرات سر تھے، چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لیے اور نیلی آنکھوں کو گہری نظروں کے حصارے میں لیے گویا ہوا۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، پلیز مجھے جانے دینا۔ لہجے میں ارتجا تھی۔ میں ابھی بہت نرمی سے پیش آ رہا ہوں، یہ چھری خود میرے حوالے کر دو۔ اگر میں نے لی نا تو سزا ملے گی۔ چہرہ سپاٹ تھا، جبکہ لہجہ چٹانوں جیسی سخت۔ اس کے لہجے اور سرمی آنکھوں میں عجیب مقناطیسی سی تھی۔ اپنے حال پر غور کیا تو فقط حماد کا ٹھاٹا مارتا سمندر شور برپا کرتا نظر آیا۔ ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ میں نہیں دوں گی، مجھے جانے دینا پلیز۔ ایک گٹلی سی حلوے معدل ہوئی۔ اپنے سامنے اس 21 سالہ لڑکی کو باضد دیکھ معاذ کی ضبط کی شدت سے جبڑے بھیجے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھائے، جبکہ ادھونی نے 2 قدم پیچھے لیے۔ خبردار جب میرے قریب آئے، میں سچ میں مار دوں گی۔ تمہاری خبردار کی تو ایسی کی تیسی۔ دانت پیستا فکر ادا کر وہ لمحے بھر میں فاصلے مٹاتا اس کے دونوں ہاتھ قابو کر گیا۔ اس کی پکڑ میں شدت تھی۔ ادھونی کو اپنی کلائیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ سادہ منہ سے سسکی نکلی، جس کو نظر انداز کرتے
माज ने साथी से इसके जबड़े को गिरफ्त में लिया। पागल हो या मुझे पागल समझती हो, वो जिसके लिए कलाई पर मौजूद शिद्दत को जब्त करना मुश्किल तरीन मरहला था, अपने मुंह पर फलाद गिरफ्त महसूस करते जी जान से लड़ उठी। ससकना आवाज बुलंद मैंने बदल गया। एक तरफ अपनी हमाकत और माथा पीटने को दिल कर रहा था, तो दूसरी तरफ इस जिलाद को अपने करीब पाकर बेबसी की एहसास ने लर्जा दिया। वो जो मुसलसल रोने का शुक्र फरमा रही थी, इसे देख माज तमतलाकर गोया हुआ। हे बंद करो अपना ये सुसु झांसी की रानी, आखिरी जुमला में हल कलाम की गई। फासला कायम करते उसने छुरी एक निशाने से खिड़की के पार की, जो अदमी की पई से होकर गुजरी। वह बदकर 2 कदम दाईं जानब उछली। इसकी हरकत पर बज़ाहिर वो नजरअंदाज कर रहा था, दर हकीकत जब के उसकी हर हरकत से माज हैदर महफूज हो रहा था। मेरी बात सुनो लड़की, आपसे लेकर दवाई जाने तक अगर तुमने अपनी बेवकूफ़ियों का सर्टिफिकेट शो किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे। अपनी बात मुकम्मल करके आगे बढ़ने लगा, जब किसी हाल के तहत एड़ियों के बिल वापस घूम कर इसके मुकाबला आया। और हाँ, एक और बात, कुछ देर में अवेजा आएगी तुम्हें कुछ इंटीग्रेशन समझाने। इंसान हो, इंसानों जैसे ही मुजाहिरा करना। गेट इट? पुरुका नहीं, लंबे डंग बढ़ता कमरा अबूर कर गया, जबकि खिड़की के पास खड़ी वो लड़की अपनी बेबसी के इंतहा पर चेहरा हाथों में छिपाए रवानगी से रोती चलेगी। कुछ देर अपना ना खत्म होने वाला दर्द आंसू के सूरत बहा हल्का करके इसने आंसू से मुतवातर चेहरा बेदर्दी से रगड़ा। खुद से एक वादा करके अपने नरसते कदमों पर खड़ी हुई, और वो वादा था माज हैदर को तबाह व बर्बाद करने का, इसका गुरूर इसकी ना को मिट्टी में तले दबाने का, इसको बेबस की इंतहा पर लाने का, जहां से चाह कर भी आज़ादी नामुमकिन न हो। माज हैदर, जिसकी तस्वीर देखे पहले इसके दिल में दीदार से सैर होकर ठंडी फवार बरसती थी, मगर आज वह दिल इंतकाम की वटी में सुलग रहा था। अगर माज हैदर को जिद थी उसे हराने की, तो अदनी दरानी को भी जिद थी उसकी जिद को आजमाने की। बाथरूम का रुख किया, खुलिया दुरुस्त करके बाहर आई, नजर भटक कर कद आवार शीशे में वाजी होते अपने अक्स पर की। वो अब तक उससे ही नीले लिबास में मबलूस थी। कुछ वक्त पहले ही अपने अदा किए लफ्ज कानों में गूंजे, मोहब्बत का तो नहीं पता, अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारने के ख्वाहिशमंद हुआ। आप मेरी जिंदगी में आए तो अचानक थे, मगर इन चंद रोज में शायद मेरा दिल आपका असीर बन गया है। आपके बगैर अब जिंदगी शायद वीरान सी हो जाए। आप मेरी वो दुआ हो जिसको मैंने लफ्जों से अदा तो नहीं किया, मगर कबूलियत का शर्फ आपकी स्रोत मिला। अलभास थे, ये खंजर कानों में हुई थे, एक हशीर परपा कर रहे थे। दर्द की शिद्दत से दिल फटने किसे कहते हैं, फिलहाल अदनीद रानी से बेहतर कोई नहीं जानता था। मैम अदवनी, अपने नाम की पुकार सुनकर इसने दाएं जानब देखा। ब्लैक कोट, पैंट, सफेद इनर शर्ट, ज़ेब तन की अपने महसूस अंदाज में अवैजा इसे सर्वेंट के साथ खड़ी थी, जिसके हाथ में मुख्तलिफ किस्म के बैग्स थामे हुए थे। आप इनमें से कुछ भी वेयर कर के नीचे आ जाएं, सर लॉबी में आपका वेट कर रहे हैं। वो अपनी भरपूर वजाहत लिए पिछले 1.5 घंटे से अदनवी का इंतजार कर रहा था, और माज हैदर खान था, जिसकी एक झलक के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, मगर आज वो अपनी बीवी के हाथों घंटाख्वार हो रहा था। जब भी कार्डफोर्ड इसके हसारी की सूरत में खड़े थे, हील की नोक से सबकी नजर उठी, मगर एकदम झुका के, जबकि उस 35 साल डिग्रेड बिजनेस टाई को माज हैदर की नजर पलटना भूल गई। वो ग्रे इनर शर्ट, ब्लू स्लिम फिट जीन्स, ब्लू जीन्स की जैकेट पर भूरे बालों में लूज कर्ल डाले हुए के अदा से मुकाबल रुकी। वह निकसी से तैयार होकर एक अदा से माज हैदर के मुकाबले रुकी। अतनी का हुसैन सरापा माज हैदर के दिल पर हशर बर्पा कर रहा था। और जो भी न्याजी से टांग पर टांग सजाए मगरूर अंदाज में बैठा था, इसे देखकर एक अबरू बचाई, जबकि मास के यूं देखने पर अदनी ने तनफ्फुर से आंखें घुमाई। अगर आपको मुझे घूरने का शुगर मुकम्मल हो गया है चुका है तो क्या अब हम चले मिस्टर हैदर खान? अदनी के अंदाज पर इस 35 साल नौजवान के लबों के किनारे फिसले एक चस उठकर कोट के बटन लगाते, फिर भरपूर नजर सरापा पैर था, फिर इस पर डालकर वो मरकजी गेट की जाना बढ़ा, जबकि इसकी अकड़ देख अदनी के खुले मुंह तनफन कर दी इसके पीछे होली, जबकि हट्टे खट्टे दराज मुहाफजन की फौज अपने इर्द देख इसके रोंगटे खड़े हो गए। सारा रास्ता गाड़ी में माई हैज खामोशी का राज रहा। अदनी पहलू बदलते उंगली चटहाती रही, जबकि माज मुसलसल लैपटॉप पर मसरूफ रहा। गाड़ी अपने मुकर्ररा मंजिल पर पहुंची। अदनी की आंखें हैरत की गति से फैली, क्योंकि ये वो तो वही हॉस्पिटल था जहां सनान जेर इलाज था। तो क्या अब माँ सनान को भी माने आया है? अदनी का दिल मामूल से ज्यादा तेज रफ्तार धड़कने लगा। इस पर एक निगाह गलत डाले बगैर जो ही माज गाड़ी से उतरने लगा, अदनी ने झपट कर मजबूती से इसका बाजुंद पहुंचा।
हैरत का शदीद झटका इसको लगा, क्योंकि पहली बार आज वो नरम लम्स इसने अपने बाजू पर महसूस किया। मुहाफिज के सवालिया नजरों से खुद को महफूज करते इसने देखा मुहाफिज ने, जो आंखों में दरियाए से लिए इसे ही देख रही थी। जी फरमाए। सर सवाल, आप प्लीज मुझे मार दें, लेकिन सनान भाई को बख्श दें, कुछ तो रहम करें, इतना सफाक तो न बने कि माफी की फिर कोई गुंजाइश भी अगर बाकी न रहे। आप ये सब यार क्यों रहे हैं? ओहो हेला मैडम, जरा ब्रेक लगाओ। क्या या वो गो का रिकॉर्ड कायम कर रखा है, या फिर मुझे जलाद समझती हो, जहाँ जाए सिर्फ लाशें ही गिराता फिरे? और वही भी जरूरी काम है मेरे पास। सिर्फ यही सब नहीं, तो पाकिस्तान से जा रही हुई, इसलिए मैं मिलवाने लाया हूँ। अपना ये छोटा सा दिमाग इतना ही इस्तेमाल करो जितनी इसकी रेंज है, समझी? मास के इसके मुंह से बुलाई करा तो सुन अधुनी पर जैसे गर्म पानी गिरा। दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी। ये तो अजल से ही होता है मिस अधुनी रानी के साथ, बुरे वक्त पर बुरी तरह जुबान फिसल जाना। अब ऐसे ही कुछ हुआ। झट से इसका बाजू छोड़कर खुद को कंपोज किया। तो क्या आप यहाँ मुझे भाई से मिलवाने लाए हैं? जी बिल्कुल, देर आई दुरुस्त आई। तुम्हें मेरी हमदर्दी करने की जरूरत अर्ज से ही लाया हूँ, मगर लगता है तुम्हें तो पाकिस्तान वापस सिर्फ मियाँ बीवी का खेल खेलने आई थी। आखिरी अल्फाज इसने दांत पीसते अदा किए, जिस पर अधनी ने गौर कैसे देखा। मुझे घूरना बाद में फौरन गाड़ी से उतरो, ज्यादा वक्त नहीं है फ्लाइट में। अंदर जाकर अपने भाई से मिलो, मैं नीचे रिसेप्शन पर रहूँ। कोई फजूल हरकत नहीं करना, समझी? अपनी बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं, जबकि अतनी ब्रेक रफ्तारी से तवील राहदारी से होती हो महसूस कमरे में दाखिल हुई। एक मुगलचस अंधेरा 400 छाया था। एक आखिरी रिश्ता स्ट्रेचर में लेटने की सांस से जिंदगी मौत की जंग लग रहा था। वो शिकस्ता और कदम उठाती इसके सराहने रुकी। आंखों से मुतवातर आंसू गिरते अंदरूनी कर बयान कर रहे थे। बहुत कुछ था कहने को, मगर कुछ था ही नहीं। सामने लेटे वजूद कोई रद्द-अमल या हरकत तो नहीं कर सकता था, मगर हाथ सुन जरूर सकता था। अपने कमजोर बाजू पर अपनी छोटी बहन के लड़ते हाथों का लम्स जरूर महसूस कर सकता था। मगर इस सब के सामने खड़ी वो अनजान लड़की, भाई मैं जो करने जा रही हूँ उसके अंजाम में खुद भी नहीं जानती, लेकिन मैं बुज़दिलों की तरह खामोश नहीं रह सकती। इस दरिंदे से इस इंसान को यूं आज़ाद नहीं छोड़ सकती। भाई इसने मेरे शौहर को मार दिया, इसने जियान का कत्ल मेरी आंखों के सामने कर दिया। लफ्ज़ जियान जैसे सनान के समातों से टकराए, इसके हाथ में हल्की हल्की सी जब्श हुई, मगर अभी अपने ख्वास में नहीं थी जो तब्दीली महसूस कर सकती। भाई फिलहाल यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मास हैदर खान के घटिया चेहरे दिखाने के लिए मुझे पहले खुद किसी महफूज जगह जाना होगा। अब मैं आपसे जल्द मिलूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। इसने नरमी से सनार के पेशानी पर लब रखे, आस्ते से कदम उठाकर इस रूम से बाहर झांका। वहां से रिसेप्शन के पास खड़ा सीनियर डॉक्टर से कुछ डिस्कस कर रहा था, जबकि एक तरफ वैसे कोई फॉर्म फिल कर रही थी। मरकजी गेट पर भी गार्ड फोर्स चाक व चौबंद खड़े थे। खतरा वाजिया था। इतनी राहदारी से होती ही मुकाबल समझ गई, जहाँ कुछ मील वार्ड्स बड़े बड़े कॉटन ट्रायल में रखे रहे थे। चेहरे पर थकावट के आसार वादी थे और दिमाग तेजी से चलाती वार्डन के मुकाबल की। भाई वो डॉक्टर सीमा आपको बुला रही है। राहदारी से होते हुए इसकी नजर एक डॉक्टर के बीच पर की। एक ससुरी निगाह डालते हुए इतना ही ना पढ़ सकी, इसलिए वार्डन के सामने हवा में तेज चलाया। जी वाह जी, आपका मतलब है डॉक्टर सीमा बुला रही है? वो भी मुझे, इसने बेयकीनी से कहना चाहा। और हाँ, वही डॉक्टर। याला यकीनन, शकील ने सोच कहा। वो आदमी मुंह सोड़ता आगे बढ़ गया। अदनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट डेंगी। जल्दी डब्बों की तलाश की। किस्मत न जीती जाए कुछ देर के लिए, जो मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर कोटेस और मास्क थैलों में बंद थे। ब्रेक रफ्तारी से बालों में पेन डालकर चोटी की शक्ल दी। एक कोट निकालकर बटन लगाकर जल्दी पहना। मास्क चेहरे पर लगाकर कुरानी आयत का वेट करते वो अस्पताल से भला हर भूर कर की अस्पताल से निकल कर फातिहा मुस्कुराहट ने चेहरे का तवाफ किया। सबसे पहले इसे नशके में बैठकर घर का रुख किया। वो जानती थी छुप कर भागने वाले कभी भी इस जगह नहीं जाता जिसका ठिकाना दुश्मन जानता हो, और माल भी पहली फुर्सत इसके घर नहीं आएगा। ये सोच कर अतनी में ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। घर पहुंचकर कुछ जरूरी सामान, जरूरी कागजात लेकर बैग में ठोसते वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई। बाल डॉक्टर से बात कर जैसे ही मुड़ा, अवेल से बुखलाई हुई इसकी मुकाबला ये सर। साथ असवर के चेहरे पर हवाई उड़ रही थी। जियान और अहमद के बाद असवर को खास ट्रेन करके माज के लिए रखा गया था। इसके फक्त पड़ते चेहरा देखकर माज ने सवारी नजरों से सर, अब वो मिस अधुनी कमरे में नहीं है, वो भाग गई। सदर यहाँ नजर चुकाते अवैज़ ने अपनी बात मुकम्मल की। वहाँ अगले ही लम्हे मासियत ने अस्पताल की एंड से एंड बजा दी। डॉक्टर सिमरत बाकी डिग्री अमले की जान में लबों में आई थी। सीसीटीवी फुटेज में अदनी को आसानी रश्के में बैठे देखा जा सकता था। वो इश्तियाल के आलम में अपनी कैप्टन चला रहा था।
जब असर इसके मगाल हाथ बांध खड़ा हुआ और सर अगर तुम इसकी बात वो चिंकारा आग लगा दो खुद से मैं सबको तुम लोगों से चिटाक भर की लड़की न संभालेगी और मेरे सामने आगे हो फिर जाया होने में। और सर हंगार आंखों से असर को घूरते एक एक गिलास पीसते बोला, सर गलती होगी, अब यहाँ खड़े मेरे दर्शन क्या कर रहे हो, जाओ ढूंढो इस बेवकूफ को। मैं अपनी डील देखूं, आज सऊदी अरब में शुगर मिल्स का त्योहार है और इधर इस पागल लड़की के पीछे हो रहा हूँ जो पागलपन का मुजाहरा करने से बाज नहीं आ रही। सर वह इनके घर जाकर देखें और शट अप, वो अब इतनी भी पागल नहीं कि यहाँ से भागकर अपने घर जाएगी। तो फिर सर अब ये कमीशन को फोन करो, तमाम हाईवे से आने जाने वाली गाड़ियों को मुकम्मल तलाशी रहो, इतनी जल्दी मुल्क से बाहर तो भाग नहीं सकती। और तमाम डॉक्यूमेंट्स फ्लाइट्स की भी चेक करो, हो सकता है तो तमाम दाहरी और हार्जी रास्ते पर पहल लगा दो। आई वांट हेयर बैक। ओके सर। कराची से इस्लामाबाद के 1.5 घंटे की मुसाफत देकर आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंची। एक फार्म हाउस था, आरिफ साहब का ज़ाती फार्म हाउस। वो लोग अक्सर गर्मियों में छुट्टियां यहाँ करा करते थे। इस जगह के बारे में किसी को खास इल्म नहीं था क्योंकि इसका मुस्तकिल ठिकाना तो नहीं था। फार्म हाउस काफ़ी अरसे से बंद होने के बायस खंडर सा मंजर पेश कर रहा था। एक गाड़ी से इस इलाके से 400 नजर चढ़ाई, हद नजर तक फकत धूल मिट्टी और जा बचा लगे दिखाई दे जाले। बहुत सी यादें थी यहाँ, अभी तो बहुत सी खुशियाँ जरूरी थी जो अब ताहियात अधूरी ही रह गई थी। खुद को कंपोज करते इसने अपने रहने के लिए जगह साफ करनी शुरू कर। कई घंटों की जोर मेहनत मुशक्कत करके भला और वो फार्म हाउस चमकाने में कामयाब रही तो अब भूखताने लगी। शावर लेके इसने डेस्क की स्किन फाउंडेशन से चेहरे का रंग बदला, आंखों पर काले लेंस लगाए। जब एक बोली भटकी याद ने इससे दस्तक दी, मिस अदनी अगली बार लेंसेस रिमूव करके आइएगा। मास हैदर का फिक्रा जो ही समातों से टकराया इसे छिड़छिड़ से लेकर इसने अपनी सोच को बुलटा झटका। अब इसका रुख बाजार की जानब था क्योंकि पेट पूजा करके वकील से भी तो मिलना था मुलजिम को कैफ व करदार तक पहुंचाने के लिए। ये एक जदीद तर्ज का रास्ता की कोठी थी जो कराची के एक पॉश इलाके में पूरी शान से खड़ी थी। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, मुसल्ला भी, कार्ड फोर्स के मुहाफिज और चारों गिर्द करंट से लेबरेज तारे। कोठी के इन बस में से मार्केट की बारी ऊंट से बना दराज बाज से खड़ी इस कोठी में एक मुकद्दसी शहर था जो हर अंदर दाखिल होने वाले बंदे को खौफ में मुतला करता था। इसी में वो 35 साल नौजवान एक अंधेरे कमरे में रोंग चेयर पर बैठा आंखें मूंदे अपना वजूद झिला रहा था जब हल्की दस्तक पर असर नजर झुकाए इस अंधेरी नगर में पैगाम लेकर हाजिर हुआ। समारोह पहुंचने से पहले एक फ्लाइट इस्लामाबाद की रवाना हुई थी। उस फ्लाइट में ही मैं भी सवार थी। हमने इस्लामाबाद में कोना कोना छान लिया मगर इनका कहीं कोई पता नहीं चल सका। इतना से असली बात सुन रहा था मगर कोई रद्दमल जाहिर न किया। 2 उंगलियों की मदद से इसे वापस जाने का इशारा किया। एक गहरी सांस भरकर असर बाहर चलता गया। इसी मौके पर माज की मोबाइल की स्क्रीन चमकवाई। नींव वासुर आंखें खोलकर इसने एक स्क्रीन पर डाली। नंबर लैंडलाइन था। पेशानी पर चंद बिल नमदार हुए। फोन जैस करके कान से लगाया। अफसर हुई आंखें सपाट थी बेतासर। मिस्टर हैदर खान, उम्मीद करती हूँ आपने मुझे पहचान लिया होगा। चंद सेकंड दोनों तरफ है खामोशी छाई रही। जब एक बार फिर आवाज गूंजी, लगता है मिस्टर हैदर खान अब मुझे पहचाना नहीं। चले तो फिर मैं खुद अपना तारुफ करवा देती हूँ। मैं हूँ अदबनी जियान, इस शख्स की बेवा जिसका आपने बेदर्दी से फकत एक अनाक की तकसीम के लिए कत्ल कर दिया। आपकी बार आवाज ढूंढ रही थी लेकिन लफ्ज़ में बुला की हकारत थी, मुकाबत के लिए फकत नफरत। जबकि अदनी का एक एक लफ्ज़ आवाज की रगें तन रहा था। शिदत जब से बाजू में लर्जिश व फकत एक लफ्ज़ वो से अदा हुआ, तुम गलत कर रही हो अदवनी। इसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई सुनाई दी। एक इल्तिजा सी थी इन चंद लफ्ज़ों में। वहाँ एक बार फिर खामोशी छा गई। एक कातिल भी भला सही और गलत के बारे में जानता है? हैरत होती है मुझे। लहजे में आवाज़ें अस्त्रिया था। नहीं, मैं वाकई कुछ नहीं जानता, बस चाहता हूँ तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि ये ख्वाहिश दिल में है। मैं ये भी नहीं जानता ये ख्वाहिश क्यों। और प्लीज़ मिस्टर हैदर खान, आप ये सब इसको कहिएगा जो आपसे और आपकी फितरत से वाकफ न हो। और जहाँ तक बात रही वापस आने की, पास आने की, तो दी ग्रेट बिजनेस टाइकून माज हैदर अब खुद चलकर मेरे पास आएगा। ओह नहीं, चलकर नहीं। आप जैसे खुद कहाँ अपना गुनाह कबूल करेंगे जो सिर्फ पावर के जोर पर लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं। सर आम आंखों के सामने इनके अजीजों की जान लेना जानते हैं। अब आपको मेरे मुकाबले कानून लाई का घसीटता हुआ। अब वक्त है मिस्टर हैदर खान, लगाएं जितनी मर्जी पावर असले का जोर लगाना है लगाएं। और आप जानते हैं मैंने दस्तक दी है कानून के दरवाजे के साथ साथ उसके दरवाजे पर, उसके दर में जहां से आप जैसे फरहौन बच नहीं सकते।
कुदरती इलाही जब कहर बनकर उन पर नाज़िल होते हैं ना, तो आप जैसों की अना, गुरूर, ताकत सब ज़ेर ज़ेर हो जाता है। आप फैसला वहीं होगा और यहाँ भी होगा। अगर बच सकते हैं, रोक सकते हैं तो रोक लें। अपनी बात मुकम्मल कर वो खामोश हुई। जब मुकाबल माज हैदर का लबों पर सेहरंगेज इत्मीनान से भरपूर मुस्कुराहट ने रस किया। ओह अच्छा, तो अब फैसला होगा, फिर तो वाकई बहुत मजा आएगा। दुनिया का कानून तो वाकई माज हैदर का एक बाल भी बागा नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? वो खामोश थी। दुधियाली रंगत और पसीने की बूंदें चमकने लगी। नीली आंखों में एक बेचैनी सी थी। चलो तुम तो खामोशी में खुद ही बताता हूँ, क्योंकि जिस दरवाजे पर तुमने खुद दस्तक देकर अपनी अर्ज पेश करके आई हो ना, जहाँ से तुम्हें फैसले का इंतजार है ना, वहां से फैसला माज हैदर के हक में ही आएगा। क्योंकि जिस दरबार में तुमने दस्तक दे के आई हो, इत्मीनान काबिल दीद था, लेकिन में वाजिया पुख्ता यकीन था। वो यकीन जो बज़ाहिर हक पर होने वाले अतनी का वजूद सुलगा रहा था। खुद को कंपोज करते हुए और तो मौत के डर से लगते हैं आप सोचने समझने की सलाहियत ने काम करना छोड़ दिया है। खा साउंड इंटरेस्टिंग लिटिल गर्ल्स, तुम मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाने का फुल प्लान बना चुकी हो। सो स्वीट, मगर क्या है ही अच्छा होता अगर एक के बजाय मैं 3 कत्ल के इल्जाम में फांसी के फंदे पर जाऊं। बाज बात मुकम्मल करके बाद में हंसी को रोकने के लिए माज ने लब दांत तले दबाए, जबकि इसके फिक्र पर आदमी की आंखें हैरत की जाती से फैली। क्या मतलब? आप पहले भी 2 कत्ल कर चुके हैं? अदरी के मुंह से मुझको टूटे लफ्ज अदा हुए, जिसको समझे वो शौक अंदाज में गोया हुआ। हाँ, एक तो तुम्हारे मरहूम शोर के खास वफादार अहमर, और दूसरा तुम्हारे नाम नहादा शोर। और अब सोच रहा हूँ आपने बेगैरत दोस्त की बेवा को भी उसी के पास पहुंचा दो। तो फिर क्या ख्याल है? मिसेस मिलना चाहोगे जहन्नम में अपने शोर से? हंसी सबद करने के चक्कर में माज का चेहरा सुर्ख हुआ। जबकि इसके जुमले पर अदनी सपाटी था, तो ये गौर भी न कर सकी कि माज ने उसे क्या कहा कर मुहातब किया है। आप मुझे धमकी दे रही हैं? आपको क्या लगता है आप मुझे इतनी आसानी से पहुंच जाएंगे? सोच है आपकी, कोशिश कर कभी देख लें, दिल तसल्ली के लिए बेकार जाएगी। क्योंकि मैं एक पीएसईओ से कॉल कर रही हूँ, ये मेरा ठिकाना भी नहीं है। इस बार अफसोस के साथ माज हैदर आपको शिकस्त होगी, कहते सादतनी ने खटक से फोन रखा। पेशानी पसीने से अरवलू थी। नीली आंखों में सुर नशे वाजियां अंदरूनी कर बयान कर रही थी। बाजार को अबूर करते वह फार्म हाउस जाने वाली सड़क पर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। सांस कतरे फूलने लगे। आंसू जब्त करके आखिरी इंतहा में थे। इंतकाम की आग में सुलगती वो अदनी दुरानी उस शख्स से नफरत न करती तो क्या करती? सड़क सुनसान थी। काले बादल सारे सर पर आन खड़े हुए। मसलधार बारिश ने बरसना शुरू किया, और शायद यही अदनी दुरानी की हिम्मत ने जवाब दिया। सड़क के किनारे गिरे दरख्त के साए वो जमीन पर बैठती चलेगी, बेजान हारे बेबस वजूद में। हो सकता नहीं था, शायद आंखों से आंसू मुतवातिर लड़ी की सूरत बहने लगे। वो बे आवाज रो रही थी। मोहब्बत सी मिट्टी लगे सुर्ख सफेद हाथों की लकीरें देखने लगी, यूं कि जैसे कोई भटका मंजिल की तलाश में हो। क्यों 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 हर मैं ही क्यों? अभी तो मैंने उन रिश्तों की खुशियों को महसूस भी नहीं किया। मेरा क्या कसूर था? मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों से मेरा सब कुछ छीन ले गया। क्यों? मैं एक जालिम शफाक इंसान। मैं तो इस वैशी शिवानी के पास एक जॉब की अर्ज से की थी। वो मेरी जात की हर बात तजलील करता। मेरे लिए मेरी इज्जत नफ्स से ज्यादा कीमती नहीं था। अगर मैं जॉब करने से इनकार कर दिया तो इसने क्या किया? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं तबाह कर दूंगी। तुम तड़पोगे मास हैदर। तुम भी तड़पोगे हर चीज से लिए, मगर यूं ही मेरा दिल खाली हाथ रहोगे। वो किसान लड़की दर्द की ऐसी इंतहा पे थी कि फूट फूट कर रोती बुलकती इस तमगर को तबाह और बर्बाद होने जाने की बददुआएं दे रही थी। फोन पाते हुए माज ने सर्द आह बढ़ी। फिर चाहूँ तो अब तुम्हें पताल से भी निकाल लाऊं, मगर मैं चाहता हूँ तुम जिस नफरत की भट्टी में सुलग रही हो, वहां दूर रहकर इस भट्टी में तुम अपने दिल में मौजूद मेरे लिए नफरत भी सुलगा कर खाक कर दो। और जब मेरे पास आओ, तुम्हारे दिल में माज हैदर के लिए फकत एक जज्बा हो, और वो सिर्फ मोहब्बत का। वक्त रीत की मान के हाथों से रेत की मान हाथों से फिसलता गया। अदरी ने अपनी फैमिली वकील से बात करके तमाम सूरत हाल बताई। जो गांव में फरसाना खातून के झूठे बयान समेत दीगरे शवाहिद इन्हें मिले, वो सब माज हैदर के खिलाफ थे। इस्लामाबाद के थाने में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, और पीएनए कोड के मुताबिक 302 के तहत 42 घंटे के अंदर गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए कैटरिंग आर्डर भी दिए गए। अदनी एडवोकेट इशफाक जलानी के कैबिन में बैठी थी। चेहरे पर इम्तनान इस बात की वाज़ेह निशानदेही कर रहा था कि वो इंतकाम की पहली सीढ़ी पार कर चुकी है। अदनी बेटा इत्मीनान रखें, वो सीरियस क्रिमिनल कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा।
वो मसरूफ से अपने लैपटॉप में उंगली चला रहा था। सुरमई आंखों में स्पॉट तासुर था जब एक बाहर एक गैर मामूली सी हलचल महसूस हुई। थोड़ी पर बेशुमार बोल लबड़े जब अपने नाम की सताएं सुनाई दी। असर और डिगर भी गार्ड फोर्स के मुहाफिजदार में पुलिस को घेरे खड़े थे। हमें अपने काम करने दीजिए, हमारे पास माज हैदर के खिलाफ सर्च वारंट है। आप बराए मेहरबानी सामने से हट जाएं। हम जबरदस्ती करेंगे तो फिर आप लोगों ने पुलिस को ही बदनाम करना है। देखिए, आप लोग जानते नहीं हैं, शहर के पिंजरे में हाथ डाल रहे हैं। सर, अगर बैंक भी बढ़ गई ना कि आप लोग किसी इरादे से आए हैं तो सबको सस्पेंड करवा देंगे। समझे मेरी बात? असर ने सलाह जो अंदाज में मदोह बयान किया। जब इनमें से एक पुलिस वाला भड़का, ओए सर के चमचे बहुत संगी तेरी, अब बोल अपने साहब को हम में भी देखें कौन सी तोप चीज है जो तो कत्ल करने के बाद यूं दहशत फैलाए रखी है। बोल माज हैदर को। वो जो पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा अस्तूदी से सारा तमाशा देख रहा था, अब के बार कड़हत आवाज में आवाज गुंजा, इधर है माज हैदर खान। और बड़े अमाक से टांग पे टांग से जाए खिड़की के पार किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रहा था, जो हर किस्म के तासर से पाक स्पाट। सुरमी आंखों में अजीब सी वहशत थी। शायद वो आंखें इस दुश्मन जान की दीदार की प्यासी थी जिनको शायद आज ताहिया शराब होना था या फिर ताउमर हिजर की आग में सुलगना था। एक इर्द गिर्द डीएसपी और नीचे एहदे के सिपाही मुख्तलिफ तासर लिए खड़े थे, जबकि मुल्क के नामूर वकील और इनके सेक्रेटरी डीएसपी के साथ सर जोड़े बैठे। इस गुफ्तगू में मुहदज मंजर इस्लामाबाद के थाने का था, जब 21 साल नीली आंखों वाले दन्नी दौरानी मुकम्मल काले लिबास जेबतन किए, सर पर नफासत से टिकट बटा, शानों से घेर लिपटी शाल, हाथों में मुट्ठी में सती से जगड़े, साथ ही एक सियाह फार्म फाइल हाथ में थामे एडिकेट इशफाक जलानी भी अंदर दाखिल हुए। सबकी नजरें अब जैसे इस बाहिम्मत 21 साल लड़की पे थी, जबकि इसकी खुद की निगाहें सामने बैठे शख्स पर रुकी, जो अपनी मुकम्मल वजाहत समेटे पूरे वसौक के साथ आंखें तेजी किए नीली आंखों में देख रहा था, जबकि वह सरापा गेज और गजब बनी बसम कर देने वाले अंदाज में इसके बराबर कुर्सी पर बैठी मुकाबल डीएसपी अदनी की जानब मुतवज्जो हुआ। दोनों हाथों की अपटियां टेबल पर टिकाकर हथेली को मुट्ठी की शक्ल देकर थोड़ी की नीचे टिकाया। चेहरा जबत की शिद्दत से सुर्खतर हो रहा था। इसका ये तपरओब दो आंखें मोड़ देख रही थी। जब दांत पीसते हुए कदरे धीमी लहजे में गोया हुई, क्या मैं जान सकती हूँ सर किस लॉ के तहत एक कातिल को इतने प्रोटोकॉल के साथ यहाँ के नजारे करने के लिए बिठाया गया है, जबकि दर हकीकत इनकी जगह यहाँ नहीं जन्म में है। लेकिन वक्ती तौर पर अगर ये सलाहों के पीछे जाएंगे तो इनकी सौ कॉल शान में कमी नहीं आएगी। आखिरी जुमले इसने वजन डालते हुए दांत पीस के अदा किया, जिस पर वो जो कुर्सी की पच से टेक लगाए बैठा था जरा सा आगे को जानब झुका, लेकिन वो पटरी शनी अपनी जगह पर टस से मिस ना हुई। मुझे जन्म में झुकने के लिए आप जितनी बेताबी है ना, इसकी कोई खास वजह मिस अदन नहीं तो फ़या पे मिस्टर हैदर। लहजे में बुला की नफरत हकारत जिसका मास्किन मुहबी गहराई तक महसूस किया। अदनी के एक एक अंदाज से वाज़ेह था कि ये सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, बला नतीजा वही निकला। माज हैदर अपने डॉल साइड पर आए। कितनी नफरत है ना तुम्हें मुझसे, तुम्हारी आंखों में मुझे अंजाम तक पहुंचाने के ये जुनून में देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगते है तुम्हारा ये एडवोकेट महाज हैदर को हरा देगा? उंगली का इशारा अदनी की पश में खड़े अशफाक जलानी पर था। अदनी की निगाहें अब भी इस शख्स की आंखों से टस से मिस न हुई, जिसकी तबीयत बर्दाश्त करना नामुमकिन था। इससे पहले के जवाब में इशफाक जलानी कुछ कहने के लिए लबवा करते, असर और दीगर मुहाफिज ने बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़कर साथी से इनके मुंह पर हाथ रखा और घसीट के बाहर की जानब ले गए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, जबकि अदनी के फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि इसकी अकल से बंदा गायब कर दिया गया है। तुम्हारा वो वकील क्या तुम खुद भी, बल्कि दुनिया की कोई ताकत भी माज हैदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इश्क दास्तान थी ये, इश्क की लिखते भी तो खुद, मटाते भी खुद और मातम भी खुद मनाते। वो जो कुछ इसकी जानब दहशत बढ़ाने को झुका था, वो मजबूत असाब वाली की साला लड़की के ही ज्यादा इसकी जानब झुकते चिंगारी में नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम जैसे गुरूर पर ना के मालिक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम जैसी ताकत रखने वाले का एक वक्त होता है, एक महदूद मुद्दत। तुम्हारी रस्सी दराज की जाती है ताकि तुम कोई गुनाह करो और तुम वही करते रहो। तुम और डील दी जाती है क्योंकि अलकरीब तुम जैसा पर दर्दनाक अंजाम हो खड़ा होगा। तुम्हारी आस लगाए क्या करोगे तुम? हाँ, आखिरी हाथ क्या है तुम्हारी? माज हैदर क्या कर सकते हो तुम, बताओ मुझे। इंसानी जान लेकर तुम समझते हो तुमसे ज्यादा ताकतवर और कोई है ही नहीं? भूल गए क्या फिरौन और यजीद जैसे जालिमों को, इसके अबरनाक अंजाम को? ये जो तुम्हें जो छूट देगी है ना, ये जो तुम्हें डील मिली हुई है ना, जानते हो जब तुम्हारी लगाम तुम्हारी रस्सी खस दी जाएगी ना, फिर तुम तड़पोगे माही बेआब की तरह, जैसे कोई दीवाना शहर में मारा मारा फिरते है ना, इससे बदतर हाल में तुम जाओगे।
मैं अदनी द्रामी तुम्हें बददुआ देती हूँ, दर्द की ऐसी इंतहा पे पहुंचो कि मौत की भीख मांगो और तुम्हें मौत नसीब ना हो। दिल में मौजूद भड़ास निकाल कर अदनी आंखें मूंदी। शायद वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, अपनी आंखों की नीमी उन शर्मीली आंखों से छिपाना चाहती थी जिनकी तपश हमवार बरकरार थी। अपनी नश छोड़ती वो एक ही जैस में खड़ी होकर 2 कदम दूर हटी। सर डीएसपी को मुखातब किया गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सोए हुए ज़मीर शायद जाग गया जाए और आप एक कातिल को इसकी जगह पर चाहें जहाँ रहना वो डिजर्व करता है। अपनी बात मुकम्मल करती है, एक गलत निगाह मास्क के पर डाले बगैर वो बरक रफ्तारी से स्टेशन अबूर कर गई, जबकि 2 आंखें ने दूर तक इसका ताक़ब किया। फूलती सांसों को कदरे काबू करते इसने रुख फार्म हाउस की जानब किया, ये सोचे बगैर कि इशफाक जलानी अचानक मौके से कहाँ गायब हो गया। आदमी के जाते ही डीएसपी मास की जानब मतवज्जो हुआ। सर, आप आगे क्या करना है? आपकी मिसेस हमारे जागे समीर को जगाना चाहती है, भला कैसे मुमकिन है? वो इधर उमर डीएसपी भी इंतहाई मतम शास्त्र वाज़े माज हैदर कैसे मुखातब हुआ। जब अबकर से असगर मदहालत की। सर, मेरे मैम को वकील को सारी हकीकत बताई है और साथी से ताकीद भी की है कि वो फिलहाल मैम को कुछ ना बताएं। अब हम आगे आपके ऑर्डर के इंतजार में हैं। इस सारे अरसे में इसने अब एक बार भी सरदा भरी। अभी अदनी को हकीकत बताकर भी कोई फायदा नहीं होगा। इसकी आंखों में माज हैदर की नफरत है, फकत नफरत। इसको अभी चढ़ने का मतलब है सोए शेर को जगाने के मुतरादफ। सनान को अमरीका पहुंचाओ ताकि वह जल्द होश में आए। बाकी अदनी के लिए माज हैदर खान को वक्ती तौर पर जियान फखर बनना होगा। फार्म हाउस में दाखिल होती ही इसने चादर शानों से झटके से उतारी, जमीन पर बैठी। पारा सो नेज़े पे था, लम्बे लम्बे नग बढ़ती और आमगाह पर आकर अंडे मुंह लेटी। नीली आंखों में सो नजरें वाजिए थी। इससे पहले कि नींद की देवी इस पर मेहरबान होती, दरवाजे पर यकबार डिगर दस्तक हुई। नीम आंखें वाक करके इसने इधर नजरें गरमाई। जब दम फिर धड़ाधड़ दरवाजा पीटने लगा। जान जैसे लबों पर आई। दस्तक देने वाले के अंदाजे वाजिया था कि कोई और नहीं, माज हैदर खान है। पेशानी के पसीने की बूंदें चमने लगी। सूखी लबों को दांतों तले दबाए वो मरकजी दरवाजे पर रुकी। दस्तक हमवार बरकरार थी। खुद को कंपोज करती इसने एक जैसे दरवाजा खोला। नजरें इस सुरमई तपश ज़दा आंखों से टकराई। लम्हों का खेल था और आंधी तूफान बना इसके मुकाबल था। जबकि वो साकत खड़ी उस 35 साल वजी नौजवान को सपाट तासर से देख रही थी। क्या लगा था तुम्हारी ये तकरीर का असर लिए मैं खामोशी से सलाहों के पीछे चला जाऊंगा? ये दुनिया है बेअदमी बीबी, यहाँ हकीकत में जीना सीखो। तुम्हारे पास दिमाग व अक्ल नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं? और जो अब तक सख्ती की हालत में हमवार खामोशी खड़ी असूदी से गोए हुई, हम वाकई ठीक कहा आपने, अक्ल की कमी है मुझ में। तभी तो आप जैसे सफाकत इंसान को दुनिया के कानून के जरिए अंजाम तक पहुंचाने चली थी। भूल गई थी कि हाँ, आप जैसे जालिम मजलूम होते हैं और हम जैसे इंसाफ की तलाश में उम्र भर प्यासे ही रहते हैं। चुप, बहुत बोलती हो तुम, बहुत। और सिर्फ बोलती हो। अपने इस दिमाग माज ने शहादत की उंगली इसके मुंह में रखी। इस छोटे दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करती हो। इसका हाथ झटके से मुझे एकदम गिराई। ये क्या, आप हर वक्त मेरी अकल पर चोट करते रहते हैं? मैं जहनी हूँ या कम अकल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, जो भी हूँ, इससे कम से कम आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दास का 35 साल नौजवान चंद सेकंड खामोशी से इस लड़की को देखता रहा जब वो मुश्किल से कंधे तक आ रही थी, मगर अकड़ ऐसी थी कि पूरी आंखें ऊपर उठाकर इसकी आंखों से मिलाई थी। एक मायूसी मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का तवाफ किया जब वो आगे झुककर इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, वैसे तो अब आपके सारे मतलब मुझसे ही निकलते हैं मिसेस। इससे पहले करनी कुछ कहने के लिए लव्वा करती मालत तेजी से हाथ ने बंद रुमाल इसके मुंह पर रखो और ज्यादा मजाहमत भी न कर सकी। गिरफ्त साथ थी। लम्हे में बेहोश वो खनौन से बेगाना इसकी आनी सीने से टकराई। नरमी से इसकी बेहोश वजूद को बाजू में बढ़ते एक ससुरी निगाह इसके मासूम चेहरे पर डाली। वो मोहब्बत थी या नहीं, ये तो शायद वो खुद भी नहीं जानता था, मगर चाहत ख्वाहिश जरूर थी। इसको पास रखने की ख्वाहिश, इसको सुनने की ख्वाहिश, इसको महसूस करने की ख्वाहिश, उसके साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश। कदम बढ़ाते हुए फार्म हाउस अबूर कर गया। कुछ जरूरी हिदायत इशफाक जिलानी को देकर इन्होंने पाकिस्तान को हैरबाद कहा। धुनी को हैवी डोज दी की थी जो अब तक होश में न आई थी। दुबई के एयरपोर्ट पर पैर रखने की देर थी कि बी कॉट फोर्स गोली की रफ्तार से इसके इर्द गिर्द खसार बनाते चलने लगे। जब अतनी को व्हीलचेयर के जरिए गाड़ी से लाया गया, ब्लैक फोर्स में मबलूस वो पूरी शान से जलता गाड़ी तक आया। जब अवैज़ हाथ में फाइल था, मैं इसके मुकाबला गुड इवनिंग सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस गाड़ी में आ जाएं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। आज सऊदी मीटिंग है रिलेटेड, नहीं तो मुझे मेल कर देना, मैं खुद देख लूँगा। बाकी तुम्हें असर फाइल दे देगा, तुम इम्तियाज से रीड करके अदन्नी के साथ जाना।
मीटिंग के बाद खुद मैं वहां जाऊंगा। और जैसे सूबेदार होती हत्या की आवाजें घंटी बजती सुनाई देती, मगर हैरत का शदीद झटका तब लगा जब खुद में बेशुमार तब्दीली महसूस। शायद इसका लिबास तब्दील किया गया था और सिर्फ सुन सकती थी अपने इर्द गिर्द मजीद में कदमों की चाफ, फ्लोर पर बार बार बढ़ता वजन, हाथ खसार की सूरत कमर के घेर लपट कर पिलर से बांधे थे, आंखों पर स्याह फाम पट्टी थी। वो कुछ भी देखने की कासिर थी। जब कुछ समझ में न आया तो सरसरी रोज कतार चलाना शुरू किया, मगर बेसुदा कोई फायदा न हुआ। पूरी जमी जी जान से लड़ उठी जब एक मर्दाना हाथ गर्दन से सफर करते कंधे तक गया। आने वाला वक्त के खौफ ने उसकी आवाज का गला घोंट दिया। वह चाह कर भी कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। लबों पर लर्जिश वाजिया थी जब एक निस्वानी आवाज समाता से टकराई। यंग मैन, काफी दिनों बाद नजर आए हो। हम कुछ काम ही कुछ ऐसा था, बल्कि बहुत खास था। आवाज जियान की थी। अब की बार अदनी को पूरी तवज्जो इनकी जानब थी। जब जबरे से किसी ने इसकी आंखों से पट्टी निकाली, हाथ हमवार बंद थे और एक तारीख ज़दा हाल नमा कमरा था। चेहरा पसीने से अरकलोद, अपने चश्म मुताब पर बह रहा था। जब जब मुकाबल दीवार चमकती, वहाँ एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की थी। स्क्रीन पर जियान और बर्टन लोफर एक साथ थे। बर्टन के हाथ में चंद तस्वीरें थी जो वो चेहरे पर खबात से सच्चाई बगौर देख रहा था, जबकि जियान गोट गोट खराम मशरूब खल्क में डाल रहा था। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? सौर समद की जानब से किया गया था। जब हंसने गोया हुआ, ये मेरे सरे ताया की बेटी और मेरे न होने वाली बीवी अदनवी दुरानी है, जो अब जरमीनी बनकर मेरी बीवी के रूप में मेरे साथ रहेगी। हम इम्प्रेसिंग। तुम जानते हो जियान, अगर एक बार तुमने इसका सौदा कर दिया तो ये वापस नहीं मिलेगी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार इसका एतमाद जीत कर अपने बिस्तर की जिनियत बना लूं, फिर इसको तुम लोगों तक खुद लाऊंगा, लेकिन 1 करोड़ से एक टिक्का कम नहीं लूंगा। क्या ये अकेली है? सवाल बर्टन की तरफ था। अकेली है, बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगा। ठीक कह रहे हो, ये एशियन गर्ल्स होती ही बेवकूफ़ है। शक्ल से वैसी काफ़ी इंस्टीट्यूट लग रही है। तुम इस जहन्नम में झुक कर क्यों रहे हो? अपनी फैमिली लेडी को समझने के चेहरे पर तशवीर थे। बदला लेना चाहता हूँ। इसके भाई को भी मैंने कोमे में पहुंचा दिया। अब इसके बीच की बारी है। मैं आज ही पाकिस्तान के लिए निकल रहा हूँ। इसके नाम खास जायदाद है। लगे हाथ वो भी निकाल के बहुत जल्द यहाँ लाता हूँ। जियान के अल्फाज थे या खोलता हुआ शीश अपने कामों में गिरता हुआ महसूस हुआ। मुतवातर बहने वाले अब थम चुके थे, मगर सूखे निशानात रुखसान पर वाजिया थे। धोखा, झूठ, फरेब, खेल तमाशा, क्या कुछ नहीं था इसके साथ। जो इसका लिबास था, इसका शोर, वो यूं इसको बेलबास कर रहा था। सख्ती की हालत कुछ ऐसी थी, महसूस ही न कर सकी। इसके बंदे हाथ पीछे खड़े शख्स ने खोल दिए थे। बेजान से वजूद खड़े रहना नामुमकिन था। वो जमीन पर डल सी की नजरें हमवार स्क्रीन पर जमी थी, जहाँ वीडियो को यूज कर दिया गया था। पॉज कर दिया गया। आहट सी महसूस हुई। माज ने आगे बढ़कर स्क्रीन से यूएसबी निकाली। कमरे में एक बार फिर मुगलचर अंधेरा था। अवेजा माज की घबरू आवाज कमरे में गूंजी, जो पहली ही सदा पर भी हाथ में एक लंबा सार काई रंग का कोट थामे बरक रफ्तार से गिरते पड़ती अदनी तक पहुंची, क्योंकि कमरे में हर सौ काली छाई थी। अदनी महसूस कर सकती थी इसको कुछ पहनाया गया। अवेजा में मुश्किल अदनी के शाने से थामे एक कुर्सी पर बैठाया। कमरे में अकदीमी रोशनी थी। नजरें जमीन पर मरकूज की अपने हर सवाल के जवाब की मुंतजिर थी। जब धीमी चाल चलता, मास पैंट की पॉकेट से हाथ निकालकर इसके मुकाबले कुर्सी पे बैठा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। चेहरा देखकर एक ठेस सी दिल में उठी थी। दोनों हाथों की कपड़ियां घुटनों पर टिकाए वो तन्वी की जानब झुका, जो हमवार जमीन को गुड़ रही थी। तन्वी, मेरी तरफ देखो। गबरू लहजे में नरमी आवाजें थी। सामने वजूद जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसने एक सर्द सी आह भरकर दोनों हाथ कुशादा सीने पर बांधे। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे ज़हन में बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं, जिनका आसान जवाब यह है कि जियान फखर ने तुम्हें सिर्फ इसलिए ट्रैप किया क्योंकि इसकी फितरत ही लालच का नासर शामिल था। वो तुम्हारा शौहर नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था तुम दोनों का। हाँ, बनने वाला था मगर बना नहीं, और शायद यही वजह थी। इससे पहले मास कुछ और कहता, मोबाइल की स्क्रीन चमकमुगाई। इसने एक नज़र आदमी को देखकर फोन कान से लगाया। तो के मुताबिक सनान की सेहत में बेहतरी आ रही थी। ठीक है, तुम कड़वी नजर रखो, वो गलती ना हो, फिर बात करते हैं। दो लफ्ज़ की बात कहकर इसने फोन जेब में डाला। मुकाबल वो अब भी खामोश थी। नरमी से अपनी जगह छोड़ते हुए अदनी के मुकाबले दराज में बैठा। अदनी की झुकी नजरें खामोश थी। मास के दिल पर हशर बर्पा कर रही थी। मेरी बात सुनो अदनी, भूल जाओ वो सब एक बुरा ख्वाब, अधूरा ख्वाब समझकर। देखो अदनी, जो कुछ देर पहले तुम्हें एहसास दिलाया कि ये दर हकीकत जियान करना चाहता था।
اس کا قتل نہیں ہوا، وہ ایک مجرم ہے، اور جس لا کے تحت میں نے اسے مارا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے ذمے میں آتا ہے۔ میں نے قتل نہیں سزا دی ہے اس کو۔ میرے پاس پیپرز موجود ہیں۔ وہ جو کب سے قدرے دھیمے انداز میں اس کو حقیقت بیان کر رہا تھا، خاموشی سے اس کا مرجایا چہرہ دیکھنے لگا۔ آنسو سے لبران آنکھیں سامنے بیٹھے شخص پر ڈالی، جو خدا جانے کس مقصد کے تحت اتنی ہمدردی کر رہا تھا۔ الفاظ تھے ہی نہیں، کہتی بھی تو کیا۔ جس کے لیے لڑتی آئی تھی در حقیقت تو وہی مجرم نکلا، جسے دل درد کی شدت سے پھٹنے کو تھا، جو اس کا مسیحا تھا۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا اس نے؟ وہی وحشی اتفاق حیوان اپنے کے ایک ایک لفظ پتھر کی طرح اس کے وجود کو خالی کر رہے تھے۔ وہ جو اب تک درازا مقابل بیٹھا اسی کی جانب متوجہ تھا، وہ اپنی جگہ چھوڑتی 21 سالہ لڑکی گھٹنوں کے بل اس کے عین سامنے بیٹھی، نازک ہاتھ ہتھیلیوں جوڑتی گھٹی گھٹی آوازوں بولے، مجھے معاف کر دیں، میں انتقام کی آگ میں ادھی ہو گئی تھی، جو حق و باطل کے بیچ فرق کر ہی نہ کر سکی۔ وہ سلگتی اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ ہے لٹل گرل جی، کیا کر رہی ہو؟ کھڑی ہو جا پلیز۔ ماں نے یکدم اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے۔ نہیں پلیز، مجھے میں اعتراف کرنے دیں، میں غلطی پر تھی، میں نے بد دعا دی تھی نا آپ کو کہ آپ کی درد کی انتہا کو پہنچیں۔ دیکھیں آج اس انتہا پر ادنوی درانی کھڑی ہے۔ میں نے کہا تھا اس کی لاٹھی بے آواز ہے، ہاں دیکھیں اس کی لاٹھی بے آواز لاٹھی مجھ پہ پڑی۔ میں نے بنا کسی ثبوت کے کسی بے گناہ کو رسوا کرنا چاہا تھا نا۔ دیکھیں ذرا، آج ادنی درانی خود بے حال ہے۔ وہ نازک لڑکی ٹوٹی حالت میں اعترافی جرم کر رہی تھی۔ اس کا ہر ہاتھوں اس چٹانوں جیسے مضبوط انسان کو کمزور کر رہا تھا۔ جانتے ہو، جہاں سچی محبت ہوتی ہے نا، وہاں اپنے اس عزیز کا آنسو دل پر گرم لوہے کی مان گرتا ہے۔ محبت میں تکلیف نہیں دی جاتی، بلکہ اپنے محبوب کو ہر تکلیف، ہر بلا، ہر پریشانی سے بچا کر اپنی آغوش میں چھپایا جاتا ہے، جہاں ہوا کی تیز دھوپ کی ساتی بھی اس تک نہ پہنچ پائے۔ تو پھر وہ تو ادنی تھی، اس کی شریک حیات، ادنی محاذ حیدر، اس کی عزت جو خود اتنے اونچے مرتبے پر فائز تھی، اس کی شہرت و عزت کے چرچے تھے، وہ اپنے ہی نام سے جڑی عزت کو یہاں سے رکھتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں گے نا تو اللہ بھی مجھے سے راضی ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے معافی تو مانگ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بے سکون رہتے ہیں، اور میں بھی بے سکون رہوں گی، کیونکہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک مجھے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی مجھے سکون ملے گا۔ اس سے پہلے کو پھر اس سے کوئی فریاد کرتی، معاذ نے جھٹکے سے اسے اپنی گھسرتی سینے میں بھیجا۔ آہنی بازو اس کے گلے لپٹ کر وہ اس کے بکھرے وجود کو خود میں چھپانا لینا چاہتا تھا۔ جانتے ہو، ادنی درانی ایک سچی لڑکی تھی، اور وہ جو سچے ہوتے ہیں نا، ان کو کہا گوارا ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو ذرا برابر تکلیف ہو، پھر تو ادنی درانی نے نہ سمجھی ہی صحیح کسی کی ذات پر حرف اٹھے۔ ہے لٹل گرل، اب بس کر دو یار، اب چپ کر جاؤ، بہت بولتی ہو تم، بہت زیادہ، اور وہ بھی فضول۔ ایک اور لفظ نہیں کہنا، ورنہ میری ڈول سائٹ تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ اس نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں سب کچھ بھول چکا ہوں، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، میں وہ سب کچھ نہیں سوچ رہا۔ محسوس کر کے تمہیں احساس ندامت کا شکار ہو۔ بعض اوقات ہمیں جن سے چڑ، طاقت، نفرت محسوس ہوتی ہے نا، جو ہماری ہیڈ لسٹ میں صف ٹیبل ہوتے ہیں، جن کا نام سنتا تک ہم گوارا نہیں ہوتا، انہی کے حصارے میں ہمیں دنیا جہاں کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور آج وہی سکون ادنی درانی کو معاذ حیدر کی آغوش میں ملا تھا۔ بے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ معاذ کی چٹان سینے سے لپٹے۔ فسو خیز لمحے میں وہ دونوں گم تھے، جب اگلی سیڑھی پار کرنے کے عرصے معاذ نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ ادنی، میری بات غور سے سنو، وہ نکاح جو بچپن میں کیا جا رہا تھا اور جو کہانی ضیاء نے تمہیں سنائی، وہ کافی حد تک سچی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ درمیان میں تمہارا دولہا بدل دیا گیا تھا۔ آخری جملے نے اپنی ہنسی ضبط کرتے شریر انداز میں کیا، جب ادنی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ چلو باقی کی حقیقت تمہیں وہ شخص بتائے گا جس پر تم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہو۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اس کے ساتھ ایک بار پھر ڈاؤن ٹاؤن مشن پہنچی، اور لوگ سوشل ایریا میں بیٹھے تھے۔ ادنی مستقل انگلیاں چٹا رہی تھی، جو محاذ بغور نوٹ کر رہا تھا۔ معاذ نے لیپ ٹاپ سے اس کے مقابلے رکھا، جس پر ویڈیو کال ملائی جا رہی تھی۔ ادنی گن اکھیوں سے کبھی معاذ کو دیکھ رہی تھی، کبھی لیپ ٹاپ پر۔ اب کی بار جب نظر دوبارہ لیپ ٹاپ پر گئی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ سانس روکے اسکرین پر چلنے والا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں سنان اسٹریچر پر سہارا لیے لیٹا مسکرا رہا تھا، جبکہ اس کے دائیں ہاتھ کی جانب اصغر کھڑا تھا، جبکہ معاذ اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے ادنی کا ہر تاثر بغور دیکھ رہا تھا۔ سنان نے پہلے اس حادثے کی حقیقت بتائی، کس طرح ضیاء نے محاذ کے روپ میں اس پر حملہ کیا تھا۔ شاید ضیاء کی حقیقت میرے سامنے کبھی نہ آتی،
मगर अहमद को जब उसने मुझे अस्पताल पहुंचाने को कहा था तब मैं बेहोश नहीं था, गुनूदगी में था। अहमद किसी को सारी हकीकत फोन में बता रहा था। सनान एक और खबर सुनकर एक बार फिर वो शिद्दत से शर्मिंदा होती चली गई। माज और सनान अपने तौर पर काफी देर तक इसको समझाते रहे। फिर महाज के इशारा देने पर सनान ने नरमी से अदनी से मुखातिब किया, आदि मेरी गुड़िया, तुम मुझ पर कितना भरोसा करती हो? मैं अगर कुछ कहूँ तो क्या इस पर भरोसा करोगी? सनान की बात पर अदनी तड़प कर गोया हुई, भाई मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। इसके बस में न था कोई लैपटॉप में जाकर सनान के गले लग जाती। मेरी गुड़िया, ये सच है कि तुम्हारा निकाह अबू अपनी रजामंदी से जियान से कर रहे थे, लेकिन इस रोज जो हादसा पेश आया था तो इज्जत और नाम वकार महफूज करने की खातिर फिरदौस दादा ने तुम्हारा निकाह इस रोज माज हैदर खान से करवा दिया था। मेरी गुड़िया, तुम इसको मेरा हुक्म समझो या गुजारिश में जाता हूँ। जो रिश्ता हमारी बड़ों ने जिस मकसद के तहत भी जोड़ा, लेकिन अब तुम मेरी गुड़िया इसको अपने दिल से आखिरी सांस तक निभाओ। अदरी ने एक नजर माज की जानब देखा, फिर सर थाम खामोश रहेगी। 3 माह बाद वो ड्रेसेस के सामने मुकम्मल प्रोटेक्ट काली मैक्सी जेब तन की खड़ी थी, जबकि विंटेज सूट में मबलूज से अंदाज में कफ लगाता आरामगाह में दाखिल हुआ। मगर नजर जो ही इस पर की तो पलटना भूल गया। वो मोहब्बत से खड़ा इस लड़की को देख रहा था जो हर बार की तरह आज भी इसका जबरदस्त मार रही थी। इसने एक गहरी निगाह इसकी सरापे पर डाले, शौक चल चलता इसकी जानब बढ़ा। है लिटिल, तो क्या चाहती है आज इवेंट पर ना जाया जाए? ओफो, मैंने कब कहा है इसे? वो अपने ऊपर लगने वाले जापा एकदम मुंह बिसौरते इसकी जानब मुड़ती गोया हुई, जबकि वो 35 साल नौजवान गहरी नजरों से इसका जायजा लेते बेशुमार के पैगाम दे रहा था, जिसको समीना अदनी एक अदा से इसकी करीब आई, इसके कोट के बटन को छेड़ते शौक अंदाज में गोया हुई। तो मिस्टर हैदर खान, अगर आप ऐसे ही मुझे घूरते रहेंगे ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अदनी ने नजरें झुकाते लब काटे। नाराज क्यों? मास की पेशानी पर बल नमदार हुए। भाई, हम अब पता नहीं कैसे घूरते हैं, मुझे अपना आप जलसता हुआ मैं होता है। आप किसी नाम महाज नहीं बाज होना चाहिए था। अदमी की फिक्र में माज ने बुलंद जानदार कह लगाया, मेरी जान है लिटिल लेडी। महाज ने नरमी से झुक कर इसकी शफाफ निशानी पर मेयर सबद की। इससे पहले कि कोई और गुस्सा ही करता, सनान ने गला खंखार कर दोनों चुमके। अब या तुम दोनों क्यों भूल जाते हो, इस घर में एक कुंवारा बंदा भी रहता है। मेरी जज्बात का भी कुछ ख्याल किया करो। राइट साहिबा ने नालवर को खत्म करो, मगर मुझ मासूम को कुछ ना किया। सनान के शोशे पर तीनों ने केक लगाया और यहाँ पर हुआ हमारा नावल खत्म। हैप्पी एंडिंग। मिलते हैं एक न्यू नावल के साथ।